Hello students, good evening. Today we are going to begin with Unit 4, which is chemical bonding and molecular structures. Up till now, in your 11th class syllabus, in first unit, you have learned about the basic concepts of chemistry, in which you learned what is element, what is compound, what is mixture, types of mixtures, then what is a mole, different systems of units, different scales, different methods of measurement, etc. etc. In second unit, that was about structure of atom. You learned about the inside of atom. That atom is further made up of subatomic particles, proton, electrons, neutrons, how these particles were discovered, and what is the model of atom. You started with Thomson's model and reached up to the quantum mechanical model of atom, orbitals, quantum numbers. This all was in your structure of atom, second unit. In third unit, you have learned classification of elements. We have discovered many elements. Till to date, we know about 118 elements. To make their study easier, it was necessary to first of all classify these elements systematically on some basis. And in this unit also, you learned that many different ways of classification were devised, like Newland's law of octaves, Dobriner triads, Lothermier's classification, Mendeleev's table, and finally we reached up to modern periodic table, which is based upon modern periodic law. We also learned periodic properties. Now, by just viewing modern periodic table, by just knowing the position of an element in modern periodic table, we can give its electronic configuration and we can also predict its nature, that whether it will be very stable or reactive or less reactive. Okay. Now our problem is that we are not surrounded by elements. If you see this piece of chalk in my hand, this piece of chalk is not an element. Air around us, this is not an element. Similarly, if you bring a glass of water, that tap water even is not an element. We are surrounded by mixtures and compounds. Mixtures, are made up of elements and compounds, and compound is made up of two or more elements combined together in some fixed ratio. Now, question is, why elements combine to form compounds? Element means atoms. Elements are pure substances made up of only one type of atoms. Compounds are also pure substances made up of two or more different types of atoms. Now question is, what is the need of chemical bonding? Chemical bonding means force of attraction between atoms which hold them together. Okay, आपको पता है कि जब एटम मिलेंगे, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में H2O, दो H एटम और एक O एटम मिल के रहते हैं, है ना? तो दो H और एक O को जो अट्रैक्शन की फोर्स होल्ड कर रही है टुगेदर, दैट फोर्स इज ए केमिकल बॉन्ड, दैट इज फॉर्मिंग ए केमिकल बॉन्डिंग. बट क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? व्हाई डू एटम्स कंबाइन टुगेदर? So what is the cause of chemical combination? Okay, what is the cause of chemical bonding?
cause of bond formation, cause of chemical combination, whatever you may say it. There are two reasons. There are two causes of chemical combination. First cause is to achieve stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हर एटम की ये टेंडेंसी है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट मोर देन 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. सो हाइड्रोजन 2 ही कंप्लीट करता है, हीलियम के 2 होते हैं ऑलरेडी, इट इज़ अ नोबल गैस. और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, they have a tendency to have 8 electrons in their valence shell, which you know is also called octet rule. यूनिट 3 में जब हमने वो वैलेंसी पढ़ा था टॉपिक, तब आपने पढ़ा था कि वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटम्स हैव टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल. तो फर्स्ट रीज़न इज़ दिस कि एटम्स ये चाहते हैं, अब जिसके पास, जैसे H एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 पूरे करने हैं, तो वो किसी दूसरे से या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा या अपना एक भी लूज़ कर देगा वो, ताकि ना रहेगा इलेक्ट्रॉन ना रहेगा ऑर्बिट, वैसे भी स्टेबिलिटी आ जाएगी. अब लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1. 2s1 means only 1 electron in second orbit, and second orbit में you know क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 0 भी है 1 भी है, मीन्स s भी है और p भी है. s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में 6 चाहिए, 6 and 2 8 चाहिए उसको, बट है तो एक. सो आइदर इट शुड gain 7 electrons or it is better to lose 1 to get stable configuration of helium. अगर लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, देखो लिथियम का नंबर 3 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 है, दूसरे में 2s1 है, 2p उसका खाली पड़ा है. इसको भरने के लिए 6 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अगर ये इसको लूज़ ही कर दे, ये सारा काम ही ख़त्म हो गया. ये किसकी इसी है? हीलियम की, विच इज़ अ नोबल गैस. तो जब Li एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इट विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज, Li प्लस विल बी स्टेबल. ओके, दैट इज़ वाई लिथियम विल ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. नाउ सी क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, क्या बनी इसकी इसी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Of course 3d is also there, but there is no electron. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम की इसी हो गई. सेकंड ऑर्बिट में 2 and 6 8, ये अप टू नियॉन, ये नियॉन की इसी हो गई, है ना. थर्ड ऑर्बिट में 3s2 3p6 3d वैकेंट. अब यहाँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका ऑक्टेट तब पूरा होएगा. 5 and 2 7 है ना, तो या फिर ये 5 and 2 7 को लूज़ करे, बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू लूज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स. बेटर ऑप्शन इज़ टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ वाई chlorine will always have a tendency of gaining an electron, and when it gains an electron, इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा हो गया, नोबल गैस नियॉन जैसी इसी बन गई, इसकी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया. सो दैट इज़ वाई Cl will gain electron and exist as Cl negative. तो हमको हमारे अराउंड लिथियम नहीं मिलेगा, क्लोरीन नहीं मिलेगा, हमको Li प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, हमको साल्ट मिलेगा लिथियम क्लोराइड. जैसे आपके घर में NaCl है, Na की भी सेम स्टोरी है. Na एटॉमिक नंबर 11, यू नो इट इज़ हैविंग 3s1 Ec in valence shell. It will also have a tendency of losing electron.
it will also get +1 by losing electron, and it will have 2s2 2p6 octet 8 electrons in outermost orbit. So Na+ is stable. तो जो आपके घर में नमक पड़ा है किचन में वो NaCl है, उसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है और वो स्टेबल है ना. अगर सोडियम का एक पीस आप रख दो तो इमीडिएटली इट विल कैच फायर बिकॉज इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर. ऐसे ही अगर आप क्लोरीन गैस छोड़ दो इस रूम में तो वो क्लोरीन गैस भी रिएक्शन करेगी इस रूम की डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंसेस से और वो Cl- में कन्वर्ट होएगी, खुद को Cl- में कन्वर्ट करेगी क्लोराइड में. Cl- इज क्लोराइड, Cl इज क्लोरीन. ओके, नेगेटिव वाले आयंस के एंड पे आइड आता है, पॉजिटिव वाले आयंस के एंड पे अम आता है. ओके, सोडियम पोटाशियम जिस स्पीसीज के नेम के एंड पे अम साउंड हो रहा है दैट मीन्स दैट स्पीसीज इज पॉजिटिव, एंड जिसके नेम के एंड पे आइड एंड हो रहा है दैट मीन्स दैट स्पीसीज इज नेगेटिव. ओके, तो सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज इट. सो वी आर स्टडिंग cause of chemical combination and you have learned that there are two causes. First cause is to get stable electronic configuration. Okay, now second cause. What is the second cause of chemical combination? Second cause is to decrease potential energy. You know, every system in this universe have a tendency to have minimum energy because decrease in energy brings stability. जितनी किसी सिस्टम की एनर्जी कम होती है, पानी ऊपर से नीचे आता है, उसकी हाइट कम हो जाती है. हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. इस पीस ऑफ चॉक को मैं छोड़ दूंगा, नीचे जाएगा. ये नीचे क्यों गया? यहाँ ये हाइट पे है. ओके, नीचे गया, इसकी हाइट कम हुई और नीचे जाने का चांसेस है तो वहाँ जाएगा, एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल. तो ऐसे ही हर सिस्टम की ये कोशिश है टू हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ओके, जैसे आप किसी टॉय का स्प्रिंग कस देते हो, है ना, बच्चों के टॉयज आते हैं, उसका स्प्रिंग आपने वो चाबी से कस देते हो, वो आगे दौड़ता है. आपने देखा होगा जैसे ही वो भागता है उसका स्प्रिंग लूज हो जाता है. जब आपने उस स्प्रिंग को टाइटली हेल्ड कर दिया तो व्हाट यू डिड, यू हैव प्रोवाइडेड इट एनर्जी. उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. वो खुद को लूज़ करता है, वो अपनी एनर्जी कम करता है, वो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है. तो एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स हैज़ एन इनहेरेंट नेचुरल टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. नाउ लेट अस कम टू एटम्स. एटम्स में यू नो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स हैं, अराउंड उसके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे हम सबसे सिंपल एक H एटम की बात करते हैं, ठीक है. H एटम के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नेगेटिव वाले, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है. नाउ टू H एटम्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों पास है. जब दो ऐसी चीज़ें पास आएंगी, यू सी लाइक चार्जेस में आपस में क्या होएगा? रिपल्शन. इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन, सिमिलरली इसके प्रोटॉन का इसके प्रोटॉन से रिपल्शन. बट ऑपोजिट्स का आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन. जब ये दूर दूर थे तो इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन था, इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन था, अब भी है. बट अब क्या हुआ? अब इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्शन शुरू हो गया और इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्शन शुरू हो गया. जो मैंने सॉलिड लाइंस शो करी हैं वो यू सी अट्रैक्शंस हैं, जो डॉटेड हैं वो रिपल्शंस हैं.
इस सिचुएशन में सॉलिड लाइंस 4 हैं, डॉटेड लाइंस 2 हैं। मतलब इट इज़ जस्ट ए मेथड टू एक्सप्लेन यू, टू कीप इट इन योर माइंड दैट इस सिचुएशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। एंड अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज़ होती है और रिपल्शन से हमेशा एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो आप कह सकते हो कि 2H एटम जब पास आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड is more than the magnitude of repulsive forces. That is why 2H atoms combine to form H2 molecule. But this is not so in case of helium molecule. दो हीलियम एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता अभी देखते हैं।